Respiratory system in cockroach. In cockroach, for respiration, there are specific structures present, and these structures are called the trachea. कॉकरोच में श्वसन के लिए विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें श्वसन नलिकाएं या ट्रेकिया कहा जाता है। इनके रक्त में श्वसन वर्णक का अभाव होता है, अतः यह ऑक्सीजन वाहन का कार्य नहीं करता है। Since we know that the hemolymph of cockroach does not contain any respiratory pigment, hence the blood does not function to carry or transport oxygen. These tracheal tubes, they help in the transport of oxygen into the insect body. अतः इन्हीं श्वसन नलिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन वहन का कार्य किया जाता है। इसमें श्वसन तंत्र स्वयं अपनी नलिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ऊतक तक पहुंचाता है। कॉकरोच का श्वसन तंत्र स्पाइरिकल तथा ट्रेकिया से मिलकर बना होता है। स्पाइरिकल्स यानी कि श्वसन रंध्र और ट्रेकिया यानी श्वास नलिकाएं। स्पाइरिकल्स, कॉकरोच में 10 जोड़ी स्पाइरिकल्स होती हैं जो शरीर के अधर सतह पर पाई जाती है। इनमें से 2 जोड़ी वक्ष भाग में तथा शेष 8 जोड़ी उदर भाग में स्थित होती है। इन कॉकरोच देयर आर 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल प्रेजेंट एट द लेटरल surface of the body. 2 of these spiracles are present in the thoracic region, 1 pair present in mesothorax, and the second pair present in the metathorax, while 8 spiracles are present in the abdomen. इन spiracles के द्वारा वायु छनकर श्वास नलिकाओं में जाती है। प्रत्येक श्वास रंध्र पर काइटिनी छल्ला पाया जाता है। The spiracles have a chitinous ring known as the peristome. In these spiracles there are hair-like structure present. श्वसन रंध्रों में रोम समान या रोम पाए जाते हैं जिनके द्वारा वायु छनकर ट्रेकिया में प्रवेश करता है। प्रत्येक स्पाइरिकल्स एक फूले हुए प्रकोष्ठ में खुलता है जिसे एट्रियम या ट्रेकियल चेंबर कहते हैं। स्पाइरिकल्स को कपाटों की सहायता से बंद भी किया जा सकता है। Each spiracles open into the interior of the insect into a small chamber which is called atrium or tracheal chamber. Atrium या श्वसन कोष्ठ कहा जाता है। स्पाइरकल्स को कपाटों यानी वैल्व्स की सहायता से बंद खोला भी जा सकता है। कॉकरोच के शरीर में ट्रेकिया यानी श्वास वाहिकाओं का एक जाल बिछा रहता है, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। प्रत्येक छिद्र महा श्वसन वाहिका में खुलती है। इनमें से एक जोड़ी पार्श्वीय यानी लेटरल, एक जोड़ी पृष्ठीय यानी कि डॉर्सल, एक जोड़ी अधरीय होती है। There are 3 longitudinal
tracheal trunk. They are one pair of tracheal trunk present at the lateral side, one pair of the tracheal trunk present at the dorsal side, and one pair of the tracheal trunk present at the ventral side. उदरीय श्वसन रंध्र मुख्य रूप से पार्श्वीय महाश्वास वाहिकाओं में खुलती है। ये महाश्वास वाहिकाएं आपस में जुड़कर अनुप्रस्थ संधियों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। These longitudinal tracheal trunk are connected by transverse trachea. प्रत्येक महाश्वास वाहिका से अनेक श्वास वाहिकाएं निकलती है। And from each tracheal trunk, various tracheal tubes originate, जो अंत में श्वास कोशिका ट्रेकियल एंड सेल में समाप्त होती है। इन कोशिकाओं में से आगे की तरफ बहुत सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें ट्रेकियोल्स कहा जाता है। ये ट्रेकियोल्स अपने अंधसिरों द्वारा ऊतकों की कोशिकाओं में समाप्त होती है। इन नलिकाओं में ऊतक द्रव भरा होता है। The respiratory system consists of a network of white shining tube, the trachea, that opens out by 10 pair of lateral aperture called spiracles. The opening of the spiracle is regulated by sphincter or valve known as the peritreme. The trachea divides and subdivides, forming fine tracheole that penetrate the tissue. Terminal part of the tracheole contain fluid that facilitate the exchange of oxygen and carbon dioxide by diffusion. During intense activity, the fluid is withdrawn from the tracheole so that more empty surface area is available and air reaches the tissue cell directly for quick oxygen supply. The trachea from outside is covered by epithelium layer. ट्रेकिया बाहर की तरफ से उपकला स्तर द्वारा ढकी हुई होती है। श्वास नलिकाओं का अध्यावरण के अंतर्वलन की भांति निर्माण होता है। This is the enlarged view of the trachea and tracheoles. Spiracle is the opening which opens into a chamber called atrium. Atrial muscles are present. Tracheal epithelium, nuclei, cytoplasm, cuticular thickening. भीतरी क्यूटिकल का अस्तर इंटेमा
कहलाता है। यह सर्पिलाकार रूप से कुंडलित या स्प्रिंग नुमा होती है, जो श्वासवाहिका यानी ट्रेकिया की भित्ति को पिचकने से रोकती है। इंटिमा की छल्ले नुमा धारियाँ टेनिडियम कहलाती है। उपकला स्तर में चपटी बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो श्वासवाहिका की बाहरी स्तर को बनाती है। श्वास की क्रियाविधि या श्वसन की क्रियाविधि। कॉकरोच में श्वसन की क्रिया अंतःश्वसन तथा बाह्य श्वसन श्वसन रंध्रों यानी स्पाइरकल्स के द्वारा होती है। एक्सलेशन यानी हवा को बाहर निकाला, इनहलेशन यानी हवा को अंदर लेना। अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन एक सक्रिय क्रिया है जो कि बाह्य श्वसन यानी कि एक्सलेशन एक सक्रिय क्रिया है, जबकि अंतःश्वसन यानी इनहलेशन एक निष्क्रिय क्रिया होती है। श्वसन क्रिया उदरीय पेशियों के लयबद्ध संकुचन एवं फैलाव से नियंत्रित की जाती है। We know that in respiration there are two processes. One, inhalation, that is taking in of oxygen, and exhalation, that is giving out of carbon dioxide. Taking in of oxygen, that is inhalation. Antahasvasan is a passive act. It does not require any energy. While exhalation, that is bahasvasan या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो क्रिया है वह सक्रिय क्रिया होती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी। जब when the muscles they expands, the air enters inside, and when the muscles they contract, the air is exhaled outside. During inhalation यानी अंतःश्वसन के दौरान वायु स्पाइरकल्स यानी श्वसन रंध्रों से होकर ट्रेकिया और ट्रेकियोल में पहुंच जाती है, जिसमें ऊतक द्रव्य यानी कि टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन इस द्रव्य में घुल जाती है तथा डिफ्यूज होकर विसरित होकर ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाती है। श्वास नलिकाओं में जो द्रव्य भरा होता है परासरण दबाव के कारण आगे बढ़ता है या पीछे हटता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण आगे बढ़ता है या पीछे हटता है। उपापचयी पदार्थों के संघनन के कारण दाब अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण श्वास नलिकाओं के अंतिम सिरे पर द्रव बाहर डिफ्यूज होने लगता है और इनके स्थान ग्रहण करने के लिए बाहर के द्रव्य के साथ वायु भी नलिकाओं के अंदर की तरफ विसरित हो जाती है।